सो कल बेसिकली प्रोसेस बिल्डर में आपने देखा हाउ टू क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। और हमने जो किया है बेसिकली व्हाट वी हैव डन, लेट मी गो बैक टू दिस। सो द एग्जांपल वाज लाइक कि जब भी कोई एक अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट करें, फॉर द अकाउंट रिकॉर्ड वन कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड शुड ऑटोमेटिकली बी क्रिएटेड। तो ये कल यूज केस थी हमारी। सो लाइक वाइज वी क्रिएटेड एक टेस्ट रिकॉर्ड नंबर 3 जो हमने कल क्रिएट किया था, यू नो। So for this particular record, we have created one of the contact automatically. So this was the thing, this was the thing what we have done yesterday. So whenever we create any of the records, so for that particular account record, one of the related contact record should be created automatically. That is what we have said. तो अब क्रिएशन ऑफ द रिकॉर्ड हैज बीन डन। चलो अब चलते हैं अपन फील्ड अपडेट एक्शन की तरफ। तो फील्ड अपडेट एक्शन बेसिकली आपने इसमें भी देख रखा है वर्क फ्लोज में ना। तो फील्ड अपडेट एक्शन देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस फॉर दैट। एक होता है आपका सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन, इसमें आप फील्ड्स को सेम, अगर अकाउंट की फील्ड है तो अकाउंट में ही अपडेट करते हो। दूसरा होता है कि क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। वर्क फ्लोज में जब हम क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन परफॉर्म करते थे तो देयर वेर फ्यू ऑफ द कंसीडरेशंस। कि पहला कंसीडरेशन तो ये होता था वर्क फ्लोज के साथ में कि दो ऑब्जेक्ट की अगर आप बात कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में होना चाहिए। दूसरा ये होता था कि आप चाइल्ड टू पेरेंट ही अपडेट कर सकते थे। दैट मीन्स आप वर्क फ्लो को फायर करेंगे चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे एंड देन यू कैन अपडेट द फील्ड इन द parent object. So this was the few of the considerations. Now same operation, what I'm attempting the same operation, cross object field update action मैं यहाँ पर भी attempt करता हूँ process builder के साथ। But here we are going to see one thing. यहाँ पे as such कोई consideration नहीं है, here there is no considerations at all. That means you can update a field in like if the relationship type is if the relationship type is lookup, or if it is if it is master detail, you can update the field from child to parent, even vice versa also. So let's do the same example. So यहाँ पे we wanted to configure a process builder on the account object, and we want to synchronize the changes inside the account for in the contact also. Now in short, what I want whenever inside the account record these three fields, phone and the fax, okay, rather two fields, phone and the fax field, if the account record phone and the fax field has been changed, if these two fields have been updated inside the account record, now we wanted to copy the same value in the contacts phone and fax fields. That means I wanted to synchronize the changes in the account to contact. That is what we want. सीधा साधा मतलब जो है इससे क्या बनता है, let me show you. Now if you probably now see कि अभी आप देखो जैसे कि यहाँ का phone value is same to the contacts, related contacts phone value, and the fax value is also same for here. ठीक है, in fact mailing city and billing city वगैरह भी same है वो, ठीक है। Now if I go here and make some changes, this is actually something like that. I make it all once, ठीक है, and then I save the record, I save the record. So मैंने account का phone change कर दिया है। So account का phone तो मैंने change कर दिया है, but you see account का phone change हो गया है, contact में अभी भी वही पुरानी value। This happens with the fax also. अगर मैं fax को change करता है, I'll make it all 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, whatever. So I make it all 9s and see what happens. So if I make any changes in these two fields, phone and fax, तो सिर्फ ये account की field change हो रही है, but the phone field of the contact, related contact, and the fax field of the related contact, so these two are having the old values. तो ये हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, we wanted to have a cross object field update action here, and we what the changes what we are demanding over here is that okay, whenever we make any changes in the phone field, in the phone field, if I make any changes, so I wanted to copy this value automatically in the related phone field also. So whenever this has been changed, I wanted the same to be get over here, ये value में भी. In fact, with the fax also, if someone changed the accounts fax field, now I wanted to copy this value automatically to the contacts fax field. That means these two fields, these two fields should be synchronized with the contact. This is what the functionality what we are demanding over here. कि जब भी अकाउंट में या फिर कॉन्टैक्ट में, जब भी अकाउंट में और कॉन्टैक्ट में कोई भी चेंजेस होते हैं, whenever there is any changes inside the account and contact, we wanted this change. Just a second. Yeah.
So here what we want is that we wanted this changes to be synchronized with the account also. यहाँ के changes यहाँ पे भी reflect होने चाहिए. So whenever I make any changes in the phone value as well as in the fax value, they should be get copied to the मतलब account का phone, contact के phone पे, account का fax, contact के fax पे copy होना चाहिए. So this is the functionality what we have to build. तो यहाँ पे हम update field के ऊपर में काम करने वाले. So let me go to the process builder once again. So let's go to the setup menu and then same create and then workflows and process builder. So yesterday we have created one process builder on the account. Let's once again create one more process builder on the same object account. Okay. So I wanted to synchronize, account to related contact, whatever the changes have been done in the account record. The account record में जो भी changes होते हैं, for example, the changes like phone field या fax field में जो भी बदलाव आते हैं, I wanted that to be get copied into the contact. That is what for. तो नाम तो देखिए आप कुछ भी दे सकते हैं. It's always good to give the significance name, ताकि किसी कोई देखे तो उसे भी समझ में आ जाए कि what this process is doing at all. So this is what we are planning for. Okay. So out of these three options, I need to select this option. A record is changed. Let me save this. So first thing, object add karna. So on which object we want? We want this to be on the account object, because यहाँ पे जैसे आप account object select करते देखो आपको एक हल्का सा warning message मिलता है कि account already have an active record change process. मतलब एक process पहले से बनी हुई है. So it won't going to stop you. ऐसा नहीं है कि अगर account object पे you have created a process that you cannot create another process on that. ऐसा कुछ भी नहीं है. Although it was going to give you an acknowledgement कि you already have something on the account object, but it won't stop you. तो आप चाहें तो फिर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपने पहले से बना रखा एक ऑब्जेक्ट पे तो आप फिर से उसी ऑब्जेक्ट में प्रोसेस बिल्डर क्रिएट नहीं कर सकते. दिस इज समथिंग नॉट लाइक दैट. तो वी कैन डेफिनेटली डू दैट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. So only when the record is changed. No, this time I will go whenever either the record is created or it is being edited. या तो नया रिकॉर्ड बनता है तब भी मैं ये चीजें सिंक्रोनाइज करना चाहता हूँ. अकाउंट का फोन कॉन्टैक्ट के फोन के साथ, अकाउंट का फैक्स कॉन्टैक्ट के फैक्स के साथ. एट द सेम टाइम आई वांट दिस टू बी कि लाइक whenever we make any editing in the accounts phone and fax, I just wanted this field to be get copied in the contact. So this time we are going with the second criteria, and that's created and every time it is edited whatever. So let me save this. Now add the criteria. So you could आप देख सकते हो लेके यानी कि चेक फॉर दी जो हमने कल किया था वही सेम कर रहा हूं मैं. चेक फॉर दी अकाउंट एक्टिव स्टेटस. चेक फॉर दी अकाउंट एक्टिव स्टेटस. मतलब आई जस्ट वांटेड कि अकाउंट जो है वो एक्टिव होना चाहिए. इफ द अकाउंट इज नॉट एक्टिव तो फिर मैं आई डोंट वांट माय प्रोसेस बिल्डर टू बी गेट फायर्ड. तो जो एक्टिव स्टेटस है वो मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड द एक्टिव स्टेटस शुड इक्वल्स टू यस. ये कल का ही क्राइटेरिया हमारा. आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज टू बी. एंड देन नहीं नहीं नहीं, ये इस पे नहीं काम करते हम. रादर रादर गेट मी रादर गेट मी सेकंड फार्मूला पे चलते हैं. ये नहीं चलेगा. तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ पे दूसरी चीज प्लान करके आपको समझाता हूँ. So here we will see for a formula. एक फॉर्मूला हम डिजाइन करेंगे. इस चेंज नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पे. तो आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस. डोंट वरी, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, आई सी टू इट्स कि ये जो हमारी दो जो फील्ड्स हैं, अकाउंट फील्ड, उसे करना पड़ेगा. एनीवेज, व्हाट आई विल डू ओवर हियर इज दैट कि ये जो दो हमारी फील्ड्स है ना, फोन फील्ड और फैक्स फील्ड, इसकी वैल्यू चेंज हुई है क्या, मैं ये चेक करूंगा, है ना. अगर वैल्यू चेंज हुई है तो मैं प्रोसेस बिल्डर फायर करूँ. मतलब इस बार मैं थोड़ा सा हटके डिजाइन करता हूँ इसको कि अगर ये वैल्यू चेंज हुई है फोन की या फैक्स की, मतलब ये प्रीवियस वैल्यूज हैं एंड समथिंग न्यू वैल्यू हैज बीन डन, या कुछ नया वैल्यू आता है, तो ही मैं प्रोसेस फायर करूंगा. तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, मैं वो फॉर्मूला बेसिकली यूज करना आपको सिखा रहा हूँ. एक बार फिर से हम चलते हैं, वही प्रोसेस रिपीट करते हैं. क्रिएट प्रोसेस बिल्डर ऑन दिस.
हाँ, सो प्रीवियस वर्जन मैंने डिलीट कर दिया है इसका. नाउ लेट मी गो synchronize account to related contact. This is what I want. So see description में भी same thing copy कर देता हूँ. I want this to be on the record changes. Select the object as to be the count object. It will give you one warning. Don't worry about the warning. You can just ignore this warning and save. Okay. Add for the criteria. Criteria is check for the account, phone, fax changes. ठीक है. फोन या फैक्स चेंज हुआ है क्या ये मैं चेक कर रहा हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट सी फील्ड्स में इंसर्ट कर रहा हूँ. तो फील्ड इज लाइक फोन फील्ड. सबसे पहले आई एम सिलेक्टिंग द अकाउंट फोन फील्ड. ठीक है. और ये फील्ड चेंज हुई है क्या. आई एम जस्ट गोइंग टू चेक दिस. तो उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारा. ठीक है. आई विल अप्लाई दैट फंक्शन. एक फंक्शन होता है हमारा इस चेंज नाम से. अदर डायरेक्टली मैं अप्लाई करता हूँ उसको इस चेंज. तो ये फॉर्मूला समझ लो पहले आप लोग. व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज दैट कि इस चेंज नाम का एक फंक्शन होता है और दिस फंक्शन विल कैप्चर. ये क्या कैप्चर करता है कि अकाउंट की फोन. जैसे आपने इस चेंज किसके आगे लगा रखा है. अकाउंट की फोन के आगे. सो इट विल सी टू दिस कि अकाउंट का फोन वैल्यू चेंज हुआ है क्या और अकाउंट का फैक्स वैल्यू चेंज हुआ है क्या. इनमें से दो में से कोई भी एक. एंड one more bracket is required. So what this function will see कि account का phone, account object का phone value change हुआ है और account का fax value दो में से कोई भी एक अगर change हुआ है. So this workflow is this process builder is going to be get fired. तो ये process builder कब fire होगा. या तो तब जब account का phone value change हुआ है इस change और या फिर तब जब account का fax value change हुआ है. ठीक है. इन दोनों में से कोई भी. ये और को आप अंदर भी ला सकते हो. ऐसा नहीं कि इसको बाहर ही रखना है. इसको आप अंदर भी ला सकते हो. लाइक दिस कुड बी डन लाइक दिस आल्सो. और इस चेंज की दोनों में से अगर आपको ऐसा सही लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो. मतलब एक ब्रैकेट में मैंने क्या ले लिया. एक ब्रैकेट में लिया मैंने इस चेंज अकाउंट का फोन. ठीक है. जैसे दिखाता हूँ इसके नीचे करके दिखाता हूँ ज्यादा से समझ पाएगा. एग्जाम्पल अकाउंट का फोन. ठीक है. Let me just copy this. इतना पार्ट कॉपी कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ. ठीक है. So this is one of the field of an account का phone field. I wanted to see कि ये field change हुआ है क्या. तो I'll take this whole field in the bracket. मैं इस पूरे फील्ड को ब्रैकेट में लेता हूँ और इसके सामने एक फंक्शन पुट अप करता हूँ. क्या नाम है फंक्शन का. इस चेंज. ठीक है. इस चेंज मतलब इट विल सी टू दिस कि ये वाली जो फील्ड है ये चेंज हुई है क्या. एक और फील्ड है जिसका मुझे चेक करना है. तो आई विल पुट वन और फंक्शन ओवर हियर. ठीक है. और ऑपरेटर लगता हूँ. एक और फील्ड इंसर्ट करता हूँ. कौन सी फील्ड इंसर्ट करता हूँ मैं यहाँ पे. फैक्स. तो दिस इज द सेकेंड फील्ड जिसका मुझे चेक करना है. क्या ये फील्ड चेक हुई. ये फील्ड में कुछ बदलाव आए हैं क्या पुरानी वैल्यू में. सो आई टेक दिस फील्ड इनसाइड द ब्रैकेट. I'll take this field inside the bracket और ब्रैकेट के बाहर मैं लिखता हूँ is change. ठीक है. So this is what the formula is all. तो आप चाहें तो ऐसा या फिर ब्रैकेट के दोनों को अंदर कॉमन में लेके ब्रैकेट के बाहर भी और लिख सकते हैं. ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना. ये जनरली कब यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा कंडीशंस होती है. मतलब कंडीशन 1 2 3 4 बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. तो उस टाइम में क्या कहता है. अब जैसे हमारे पास तो दो ही कंडीशन है. तो दो कंडीशन कंडीशन 1 और कंडीशन 2 इतना ही है अपने पास. और जनरली आगे चल के कभी अगर आपको मान के चलो कंडीशन 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी रहे तो बार बार ये और लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको. कंडीशन 1 कॉमा कंडीशन 2 कॉमा 3 कॉमा 4 और सबके बाहर में और लगा. तो ये ऐसा रहता है. तो ये भी एक दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कि ये आपको कोड रिडक्शन में यूज किया जाता है. इसलिए ये भी पता होना चाहिए. अभी फिलहाल हमारे पास दो ही कंडीशन है. तो दो कंडीशन को आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो. कंडीशन 1 और कंडीशन 2. तो पहली कंडीशन क्या है हमारी. द फर्स्ट कंडीशन इज कि क्या अकाउंट की फोन फील्ड में चेंजेस आए हैं. और दूसरी कंडीशन है क्या अकाउंट की फैक्स फील्ड में चेंजेस आए हैं क्या.
तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज ऑल अबाउट। लेकिन इसका एक फॉर्म और है, अगर आपको कोड मिनिमाइज करना है तो आपको ये भी फॉर्म पता होना चाहिए, और ब्रैकेट के बाहर लिखो और ब्रैकेट के अंदर सारी कंडीशंस को कॉमा में डाल दो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट माय फार्मूला है। अगर ये फार्मूला इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अगर बदलाव आते हैं फोन में और फैक्स में, देन ओनली आई वांटेड माय प्रोसेस बिल्डर टू बी गेट फायर, सो आई एम जस्ट सेविंग दिस formula expression is invalid, extra or, okay, by extra or, take this whole into the bracket. Let me now see again. Okay, fine, no problem. Let me take this whole term into the brackets, may le, and then is change, and then or. चलो अब देखते हैं, एक कंडीशन ये हो जाती है, इस चेंज here one bracket is required, okay, no bracket, the opening bracket, दो opening दो closing, and दो opening दो closing, let me now say this, ब्रैकेट्स कम थे वहां पर, ओपनिंग के लिए क्लोजिंग नहीं था, इसीलिए ऐसा हुआ। ओके, नाउ लेट ऐड द एक्शन। तो अब हम क्या चाहते हैं, आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन वी वांटेड टू हैव द अपडेट रिकॉर्ड्स, हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं। लेट्स सिंक अकाउंट टू कॉन्टैक्ट, गिव एनी नेम व्हाटएवर यू वांट। रिकॉर्ड टाइप आप किस में चेंजेस चाहते हैं, अब देखिए, अगर आप अकाउंट के अकाउंट में चेंजेस चाहते हो, सेम ऑब्जेक्ट, अगर आप अकाउंट के चेंजेस को अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, दैट्स समथिंग कॉल्ड एज सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन, तो गो विद द फर्स्ट, ठीक है। दूसरा क्या है कि सिलेक्ट अ रिकॉर्ड रिलेटेड टू द अकाउंट, मतलब समथिंग रिलेटेड टू द अकाउंट, अकाउंट के चेंजेस को कहीं और रिफ्लेक्ट करना चाहते हो, माने क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। तो ये जो दो आपके जो है यहाँ पे, ये आपका सेम ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन, दूसरा है आपका क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। तो यहाँ पे हमारी नीड क्या है कि अकाउंट के चेंजेस को हमको कॉन्टैक्ट में रिफ्लेक्ट करना है, सो वी आर गोइंग फॉर द सेकंड ऑप्शन, ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। 1 second गाइस। यस, तो बिकॉज वी वांटेड टू हैव क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन, हम चाहते हैं कि अकाउंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे फोन और फैक्स, तो वो सेम चीज जाके कॉन्टैक्ट को भी हिट करना चाहिए, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉस ऑब्जेक्ट फील्ड अपडेट एक्शन। तो क्रॉस के लिए आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। तो अब आपको यहाँ पे वो सारी ऑब्जेक्ट्स लिस्ट आउट हो जाएंगे जो कि अकाउंट से रिलेटेड है ना, तो उसमें से आपको कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है। तो अकाउंट के चेंजेस मुझे किस ऑब्जेक्ट में चाहिए, आई वांट टू हैव दिस होल इन द कॉन्टैक्ट्स, तो मैं इस पूरी लिस्ट में से किसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट्स में से, ठीक है। मतलब अकाउंट अगेंस्ट कॉन्टैक्ट ऐसा है, तो लेट मी चूज विद दिस। तो यहाँ पर भी अगर कोई क्राइटेरिया डालना है तो डालो, वैसे नो क्राइटेरिया, मतलब बिना किसी क्राइटेरिया के डायरेक्ट हिट कर रहा हूँ। चलिए अब हम फील्ड्स लेंगे, फील्ड्स मैपिंग करेंगे। तो अब पहले यहाँ पे आपको अकाउंट्स की फील्ड देखनी है कि अकाउंट्स की फील्ड को किससे मैप करने वाले हो, इस तरह से, या फिर कॉन्टैक्ट की फील्ड को किस तरह से मैप करने वाले हो, ठीक है। So there is a field called as phone, business phone in the contact object. Business phone में कौन सी फील्ड जानी, कहाँ से डेटा जाना चाहिए, फील्ड रेफरेंस। आई वांटेड टू टेक इट फ्रॉम वन ऑफ द फील्ड ऑफ अकाउंट, अकाउंट की फोन फील्ड, अकाउंट की फोन फील्ड, सिलेक्ट एंड चूज। तो इसका मतलब क्या हुआ, कल मैंने आपको बताया था, दिस इज व्हाट समथिंग अ डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स, है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। डेस्टिनेशन कॉमा सोर्स का मतलब होता है सोर्स, डेस्टिनेशन का नाम पहले आएगा और सोर्स का नाम बाद में आएगा, डेटा हमेशा सोर्स टू डेस्टिनेशन कॉपी होता है। तो अब ये क्या होने वाला है कि अकाउंट में फोन में जो भी चेंजेस करोगे आप, अकाउंट के फोन पे जो भी चेंजेस करोगे आप, दैट विल गोइंग टू बी कॉपीड इनटू द बिजनेस फोन, यानी सिर्फ फोन ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है आपका कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट, here are the fields of contact and here are the fields of account. What you are making, account के changes को आप contact के changes पे reflect करते हो, this is something destination comma source, always remember this, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। apart from this phone, the second is fax। मैं क्या चाहता हूँ, I wanted this like
कि जो हम यहाँ पे फोन और फैक्स दोनों के चेंजेस, अकाउंट में अगर मैं फोन में कोई चेंजेस करता हूँ तो वो भी कॉपी होना चाहिए फोन फील्ड पे, अगर मैं कोई चेंजेस फैक्स पे करता हूँ तो वो भी कॉपी होना चाहिए। ठीक है, तो फोन के लिए तो मैंने प्रोसेस लिख दिया है कि अकाउंट का फोन कॉन्टैक्ट के बिजनेस फोन पे कॉपी हो जाना चाहिए। लेट मी ऐड वन मोर रो एंड दैट इज फैक्स। तो मैं यहाँ से फैक्स टाइप करता हूँ तो जितने भी तरह के फैक्स होंगे फील्ड वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। संदेश, व्हाट आई डिडंट गेट व्हाट यू हैव टाइप्ड। सॉरी सर, ये प्राइवेट मैसेज किया था चेन में, साउंड इज क्लियर एनीवेज और नॉट। anyways, no problem, चलो ठीक है। So it's like facts field, business facts, ठीक है। तो अकाउंट कॉन्टैक्ट की इस फील्ड पे कहाँ से फील्ड चाहिए आपको, डेटा कहाँ से चाहिए, फ्रॉम द स्ट्रिंग फील्ड रेफरेंस। अगर किसी दूसरी फील्ड से चाहिए तो हमेशा फील्ड रेफरेंस लो, और यहाँ पर हम डालेंगे आपकी फैक्स, अकाउंट की फैक्स फील्ड एंड लेट मी सिलेक्ट दिस। तो अब केवल यही दो फील्ड का कॉपी करना है, आप चाहो तो मेलिंग सिटी, बिलिंग सिटी इसको भी ला सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही रख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे दो ही चीजें दी आपको कि अकाउंट का फोन और अकाउंट का फैक्स कॉन्टैक्ट के फोन और कॉन्टैक्ट के फैक्स के साथ सिंक्रोनाइज हो जाना चाहिए, तो मैंने छोटा ही रखा इसको। तो वही हमने किया कि अकाउंट का फोन और अकाउंट का फैक्स ये आपके कॉन्टैक्ट के बिजनेस फोन बिजनेस फैक्स नाम की फील्ड पे कॉपी हो जाएगा। लेट मी सेव दिस, ठीक है। चलो एवरीथिंग हैज बीन डन, सब कुछ हो चुका है, अकाउंट ऐड हो गया है, कंडीशंस ऐड हो गई, एक्शंस ऐड हो गया है ना, दिस एवरीथिंग हैज बीन डन। नाउ लेट्स एक्टिवेट दिस, कंफर्म। वंस इट हैज बीन डन सो इट्स टाइम टू टेस्ट इट। आप चाहो तो एक बार व्यू प्रोसेस में जाके देख सकते हो, ये आपने बनाया है अभी एंड दिस इज ऑन द अकाउंट ऑब्जेक्ट एंड इट्स इन एक्टिव स्टेटस। तो चलो अब मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे अकाउंट पे एंड लेट मी वंस रिफ्रेश दिस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू रिफ्रेश एवरी टाइम। तो नाउ बिकॉज दिस इज ऑल वन, लेट मी मेक इट ऑल टू, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इनिशियली आई एम जस्ट मेकिंग चेंजेस इन द फोन फील्ड, सिर्फ फोन फील्ड पे चेंजेस कर रहा हूँ। अकाउंट की फोन को ऑल टू कर दे रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो कि कॉन्टैक्ट में फोन का वैल्यू अलग है। Let me try to save this whole data. So now account has been changed to phone, this and your contact phone also has been copied with the same value. तो ये फोन के लिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। Let me now check this with fax. Fax के लिए करता हूँ मैं, let me make it all like all 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. So let me save this data and see what happens. So now this is also working for the fax, ठीक है, दोनों के लिए सही काम कर रहा है। Now let me make at a time, let me make the both of the changes. So this is the way to test the code. देखो आपको मैं ये तरीका भी सिखा रहा हूँ। इनिशियली एक एक फील्ड से देखा मैंने, अब मैं तीसरा टेस्टिंग कर रहा हूँ एक साथ दोनों फील्ड चेक करके, राइट। So I'm making this to be all 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and I'm making this as to be all 6, 1 2 3, okay, ठीक है। So this is what, अभी मैं दोनों पे चेक करता हूँ एक बार। इस तरह से ना अपना कभी भी काम को चेक किया करो। So all 5 and all 6, ठीक है। So this is something called as field update action. This is something called as field update action. And typically मैंने cross object सिखाया आपको, because same object field update action is quite easy actually, ठीक है। Now we have few assignments for you guys. You need to configure a process on the lead to assign the task, ठीक है, task record to the current user. If the industry is banking, something like that, and the annual revenue is more than 50 lakh, whatever. Then go with this, go with these two assignment, and this completes your process builder. Analytics, I'll be starting it by tomorrow. Actually, today I have some work with my project, so I'll be starting it by tomorrow. So go with this, guys. Okay. आज इतना ही करो and try to solve these two assignments. If you find any difficulty, you can ping me in the WhatsApp. By tomorrow, I'm going to start with the reports and dashboard. Let me first of all stop the record.